So hope that you all are enjoying the series of lectures provided from our side, from our mentors, and believing that with this amazing pattern of our teaching, you will be able to get knowledge in the best possible means that we are able to provide you. Okay, so I hope that you are able to understand the whatever we are doing, whatever way we are teaching you, and we are there to help you out anyway at every time. Okay, so we were doing your chapter number 5, class 6, geography, major domains of the earth, and we started this chapter understanding the name and the meaning of the word domain. Domain का meaning क्या होता है? As we always do, as I always do, whatever I explain you in bits, I explain you in parts, so that you are able to get what is written in your books. ठीक है, जब तक हम बुक्स की लाइंस को रीड नहीं करेंगे तो आप बुक्स को नहीं समझ पाएंगे. You will not be able to get what is written in the book. So it is important to read from the book as well. You should know how you need to read the lines. बहुत नया आखिरी ये सब्जेक्ट मैटर है. ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट इज अ वेरी वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, राइट? एंड इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, काफी इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज आपको इतना सारा नया नॉलेज मिल रहा है. यू आर एबल टू गेट समथिंग वेरी न्यू. Every chapter is providing you with something extra that you can add up to your knowledge always, right? And whatever you are studying in this, try to observe it around your surroundings, wherever you live, wherever you are going, just observe. अगर हम लिथोस्फीयर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कवर करा, हमने आपके हाइड्रोस्फीयर कवर करा है. Try to observe all these things in your surroundings. आपको ये surroundings में observe करना पड़ेगा. And when you will observe, when you will start observing, you will feel like अरे ये तो हमारे सामने ही है. This is something which is actually visible to us. Okay, so that way the subject will become interesting for you. Okay, all right, so let's begin and move ahead. Today we will be completing the chapter. आज हम आपका chapter finish करने वाले हैं. We'll be finishing up with the last two topics, that is atmosphere and biosphere. Ultimately we'll be reaching to biosphere, जो कि आपका एक बहुत narrow zone है, where we see lithosphere, atmosphere and hydrosphere. All these three things are connecting. ये तीनों के तीनों sphere जब आपस में एक दूसरे से interact करते हैं, overlap करते हैं, so we see that you get biosphere. And biosphere एक बहुत ही narrow zone होता है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, बिकॉज वहां पर आपको तीनों चीजें मिलेंगी. यू विल फाइंड थ्री एलिमेंट्स, लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स आपको मिलते हैं. You will find land, you will find air, and you will find water there. Okay, so the word bio, जो word आपका bio है, इस word bio का meaning ही क्या होता है? लाइफ होता है. Today we'll be talking about atmosphere also. एटमॉस्फेयर का मीनिंग होता है वेपर. ओके, सो जो लिटरल मीनिंग है वर्ड्स का वो आपको मालूम होना चाहिए. until and unless you don't know what is the meaning of the word, you are like, why are we studying? Okay, all right, so we have a just quick revision to it, what all things we have covered. We started with understanding the sustaining elements. हमने sustaining elements की बात करी थी, land, water, air. Then we started talking about solid portion of the earth, जिसे lithosphere बोला जाता है. हमने एटमॉस्फेयर के बारे में इनिशियली लिटिल बिट डिस्कस करा है. आज हम इसको और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. वी टॉक्ड अबाउट हाइड्रोस्फीयर, and ultimately today we'll be discussing in detail about biosphere as well. We came to lithosphere and we completed it in the previous lecture, जहां पर हमने देखा कि हम अर्थ को दो तरीके से, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं और एक आपके ओशन बेसिन्स होते हैं. हमने आपके 7 कॉन्टिनेंट्स देखे थे एंड 5 मेजर ओशंस की बात करी थी. वी टॉक्ड अबाउट द 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. हमने आपके ये 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल में बात करी थी. हर एक कॉन्टिनेंट का अपना अपना एक फीचर है, हर एक कॉन्टिनेंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का. अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है. देन कम्स योर नॉर्थ अमेरिका.
ओके, देन हमने देखा एशिया और यूरोप आपस में सेपरेटेड है आपके यूराल माउंटेन्स से। साउथ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज है जिसे बोला जाता है एंडीज माउंटेन्स, जो कि आपके नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका से साउथ अमेरिका के साउथ तक एक्सटेंड होती है। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द रिवर्स। साउथ अमेरिका में आपकी एक लार्जेस्ट रिवर है जिसे अमेजोन रिवर बोला जाता है। यहाँ पर एक अमेजोन फॉरेस्ट भी है। अमेजोन रिवर के आसपास वाले एरिया को अमेजोन बेसिन भी बोला जाता है। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर हमने एक रिवर की बात करी थी, नाइल रिवर, जो कि सबसे लंबी रिवर है दुनिया की। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, देन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था कौन कौन से यहाँ पर आपको ओशन बॉडीज दिखती हैं, वाटर बॉडीज कौन सी हैं। ऑल्सो मार्केट ओवर हियर दैट नॉर्थ अमेरिका में भी एक माउंटेन रेंज है और उसे बोला जाता है रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन्स एंड अपलेशियन माउंटेन्स। ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में यू हैव रॉकी माउंटेन्स एंड नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में हमारे पास में अपलेशियन माउंटेन्स आते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम एज वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स एंड ईस्ट में इट इज योर अपलेशियन माउंटेन्स। ओके, हर कॉन्टिनेंट में आपको माउंटेन रेंज मिलेगी। साउथ अमेरिका में हमने एंडीज माउंटेन्स के बारे में बात करी। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर देखिए आप रॉकी माउंटेन्स, अपलेशियन माउंटेन्स। यूरोप में आपके पास में यहाँ पर एल्प्स माउंटेन है। अफ्रीका के अंदर आप देखते हैं यहाँ पर एटलस माउंटेन्स है, और एटलस माउंटेन्स के बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, वी टॉक्ड अबाउट इट, सबसे बड़ी डेजर्ट है ये। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अफ्रीका के बारे में ये भी डिस्कस करा था कि यहाँ से 3 लैटिट्यूड पास होते हैं, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन एशिया के अंदर आपको पता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं आपकी, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, हिमालयन माउंटेन्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपके पास में यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसे बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑल दीज ब्राउन लाइन्स दैट यू कैन सी इन द कॉन्टिनेंट्स, इस मैप में आपको जहां जहां भी ब्राउन लाइन्स दिख रही हैं, दोज आर द माउंटेन रेंजेस। वो क्या है? माउंटेन रेंजेस है। दैट इज वाई आपको मैप्स रीड करने आने चाहिए। कि मैप्स को आप कैसे रीड करेंगे? बिकॉज यहाँ पर जो भी आपको ये ब्राउन कलर से इंडिकेट करा जा रहा है, दिस ब्राउन कलर इज प्रेजेंटिंग यू द माउंटेन रेंजेस in the continents. All right, then we discussed about your ocean bodies. Hydrosphere discuss करा था। आपके Pacific Ocean, one of the largest oceans that we have. Then we have Atlantic Ocean, Indian Ocean, one of the oceans which is named after our country. Indian Ocean के north में एशिया आता है, Indian Ocean के west में अफ्रीका आता है, and Indian Ocean के east में ऑस्ट्रेलिया आता है। Also, we have Southern Ocean with us, and we have Arctic Ocean also. Arctic Ocean, Arctic Circle के वहां पर लाई करता है, right? Okay, so I hope ये सब चीजें आपको याद होंगी. You have all these things in your mind. We discussed about the continents. We discussed about your hydrosphere. In hydrosphere, we also talked about the percentage of the water that is available as fresh water, as salty water, the percentage which is stored in ice sheet and ground water. ऐसा कुछ percentage of water है जो कि आपका underground water है, and there is also a percentage of water which is found in the form of ice sheets. I showed you the pictures of glaciers also. Okay, so I hope that till now whatever we have covered is clear and fixed in your mind. Today we will be moving ahead and now we will be discussing about atmosphere. आज हम atmosphere के बारे में discuss करने वाले हैं। आपका atmosphere क्या होता है? What is atmosphere? इसमें कौन कौन से चीजें आती हैं? Atmosphere comprises of what all things? कौन कौन सी gases हैं? बहुत important gases हैं हमारे atmosphere में जो कि हमें protect करती हैं, which actually help us. Okay. So we start with atmosphere for today's lecture. All right. The earth is surrounded by a layer of gas which is called as atmosphere. तो जो हमारी earth है, earth आपकी एक layer of gas से surrounded है.
और ये जो लेयर ऑफ गैस है इसे बोला जाता है एटमॉस्फेयर। इसे क्या बोला जाता है? इसे एटमॉस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो लेयर ऑफ गैसेस है ये बहुत ही थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है विच इज इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्लैनेट का। बिकॉज अगर आपके लिए एक थिन ब्लैंकेट ऑफ गैशियस लेयर्स प्रेजेंट नहीं होगी तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, you will not be able to exist. Okay, because this is one of the most important component, life sustaining elements बहुत important component है एक ये। ठीक है, so that is why आप भी देखते हैं कि जो आपकी अर्थ है वो एक लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है, बहुत ही थिन ब्लैंकेट होता है, दैट मीन्स बहुत थिन लेयर्स होती हैं ये। ओके, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट के ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं। Until and unless the planet doesn't have these layers, people will not be able to survive. Not only people, even plants, because plants को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। You know that how do we breathe? हम कैसे breathe करते हैं? We need air, we need oxygen. That is why you and me are able to survive. You and me are able to live. Otherwise, अगर ऑक्सीजन नहीं होता, एयर नहीं होती, तो हम ब्रीदिंग नहीं कर पाते। एंड दिस ऑक्सीजन दैट यू ऑफन लिसन, आपने कई बार सुना होगा ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोविड के टाइम्स में भी अगर आपने अपने पेरेंट्स को सुना हो तो आपने सुना होगा ऑक्सीजन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें चाहिए। क्यों? बिकॉज दैट इज दैट पर्टिकुलर गैस जो कि आपको हेल्प करती है ब्रीथ करने में। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपके आसपास में जो भी चीजें हैं, स्टार्ट ऑब्जर्विंग देम, यू विल फाइंड एवरीथिंग रिलेटेबल। आपको हर चीज रिलेटेबल दिखने लगेगी। It provides us with the air we breathe and it protects us from the harmful effect of the sun rays. तो सन रेज के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उससे भी आपको ये बचाती हैं। इतनी सारी गैशियस लेयर्स, like you will find that there are 5 layers of gases, और इन सारी लेयर्स को क्रॉस करते हुए आपके सन रेज आती हैं। ठीक है, बिकॉज सन इज आपको पता है सन कहाँ है, सन की पोजीशन कहाँ है, एंड योर अर्थ इज ऑन द थर्ड नंबर पे आपकी अर्थ आती है। ठीक है, तो वो जो सनरेज हैं, वो सनरेज जब आपकी अर्थ पर आ रही हैं, व्हेन दी सनरेज आर एक्चुअली कमिंग ऑन द अर्थ सरफेस, दे नीड टू कम आउट फ्रॉम पासिंग द मेजर 5 गैशियस लेयर्स। ये जो आपकी गैशियस लेयर्स हैं, इन गैसेस लेयर्स को क्रॉस करते हुए आपकी सनरेज एंटर करती है हमारी अर्थ सरफेस पर। नाउ यू नो दैट ये जो सनरेज हैं ये बहुत हार्मफुल होती हैं। दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल, बिकॉज आपने अपने ऐसे पेरेंट्स को बोलते हुए भी सुना होगा, डू नॉट गो आउटसाइड, अभी बहुत तेज गर्मी हो रही है, बहुत तेज धूप है, बाहर मत निकलो, तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज सनरेज जो है वो इतनी हार्मफुल होती है, वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं, आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं, आईसाइट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। सो सनरेज आर वेरी वेरी हार्मफुल। तो अगर इमेजिन करके देखिए कि अगर आपकी अर्थ पर ये एक इंपॉर्टेंट गैसेस की लेयर नहीं प्रेजेंट होती तो सनरेज जो है वो सीधे आपके अर्थ पर आती और वो ह्यूमंस को पूरी तरीके से उनकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर देती। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास में ये गैशियस लेयर्स प्रेजेंट है, दैट इज वाई हम ये देखते हैं कि सनरेज फिल्टर होकर के आती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सनरेज जो है वो फिल्टर होकर के आ रही हैं और वो इतना अफेक्ट नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज गैशियस लेयर्स। अगर ये गैशियस लेयर्स प्रेजेंट ही नहीं होती तो वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू सर्वाइव, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, the atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on the composition. तो हर layer में in each and every layer you will find a different composition. ठीक है, again जैसा हमने latitudes and longitudes वाले चैप्टर में स्टडी करा था, that these latitude and longitudes are your reference lines which are created by geographers, which are created by individuals and humans for better understanding. In the similar manner as such आपके एटमॉस्फेयर में, स्काई में
कोई ऐसे लेयर्स नहीं बनी हुई हैं. These are just the imaginary divisions that has been done. Observations करी गई कि हम जब यहाँ तक हैं, इस पर्टिकुलर लेवल तक, इस पर्टिकुलर हाइट तक, तो यहाँ तक हमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं. जैसे ही हम इस पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. इस सेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर में देयर आर चेंजेस. सो ऐसे ये रियलाइज करा गया कि आपके स्काई में, आपके एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं और हर एक लेयर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स based on composition, temperature and other properties. ठीक है. These layers starting from the earth's surface are called as troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. So in layers के क्या क्या नाम हैं? 5 layers हैं और इन पांचों layers के names हैं. कौन कौन से names हैं? It is troposphere, then stratosphere, then we have mesosphere, thermosphere and exosphere. Just repeat the names. आप अपने माइंड में प्लीज इन नेम्स को रिपीट करें so that you are able to learn them. See over here, it is troposphere. सबसे पहले अर्थ सरफेस से अगर हम शुरुआत करें यहाँ से, तो सबसे पहले जो लेयर आती है, जो आपकी फर्स्ट गैशियस लेयर है, दैट इज योर ट्रोपोस्फियर. देन वी हैव स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, thermosphere and exosphere. I show you one diagram. उस डायग्राम से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा. Okay, so have a look. इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें. These are the 5 layers. So आपका अर्थ सरफेस ऐसा है, दिस इज जियोइड इन शेप, और इस पूरे जियोइड शेप के आप चारों तरफ देखेंगे कि पूरे आपको ऐसे गैशियस लेयर्स मिलती हैं और उन गैशियस लेयर्स के क्या क्या नेम्स हैं. इट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, thermosphere and exosphere. These are the 5 layers and the names. Okay, just have a look at. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम. इस डायग्राम को आप अपनी अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करें. बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये. दिस डायग्राम यू शुड नो. प्लीज लर्न दिस डायग्राम. Okay, now we move ahead. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air. So atmosphere में आपके जो gases present है, उनकी कुछ ना कुछ percentage होती है. ठीक है. There is some amount of the gases that are present. ठीक है. So the percentage of nitrogen which is present in the atmosphere is 78%. तो नाइट्रोजन जो है वो आपके 78% प्रेजेंट है. ऑक्सीजन 21% and other gases like carbon dioxide, argon and other they comprise 1% by volume. Okay, so सबसे ज्यादा percentage किसकी है? It is nitrogen. So nitrogen, it is 78% which is present in the atmosphere, having the highest percentage. सबसे ज्यादा amount में nitrogen present है. Then comes your oxygen, which is one of the important one because ये आपकी breath of life है. While nitrogen helps in the growth of living organisms, oxygen आपको individuals के लिए it is breathe of life, it is the breath of life because आपको ये survive करने में help करती है. Also nitrogen की अगर बात करें, so nitrogen जो है it helps in growth of the living organisms, plants, animals, they need nitrogen. Okay, carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs the heat radiated by the earth. Now read the line very very carefully. Very important line about carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है और ये जो गैस है ये बहुत ही कम अमाउंट में आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका एक रीजन है एंड द रीजन इज it absorbs heat which is radiated by the earth. That means
thereby keeping the planet warm. Now what does this line mean? आप इस लाइन को एक बार वापस से रीड करें. It is saying that it absorbs the heat which is radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. Now what happens? See, इस लाइन को समझने के लिए यहां पर I will be explaining one thing. Please listen it very carefully. See what happens. ये आपका अर्थ सरफेस है. This is your earth surface. You know that we receive sun rays. ठीक है, हमें सन रेज मिलती है ना. We receive sun rays. So sun rays आपको मिल रही हैं अर्थ सरफेस पर. ठीक है, so sun rays are coming down on the earth surface. अब जब सन रेज आपके अर्थ सरफेस पर आती हैं तो अर्थ सरफेस पर यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो आपके ट्रीज हो और यहाँ पर आपके कुछ घर वगैरह बने हुए हो, बिल्डिंग्स हो, whatever it is, और इवन द सॉइल दैट वी हैव, यहाँ पर आपकी कुछ सॉइल भी प्रेजेंट हो सकती है. ठीक है, दिस इज द क्रस्ट. ये क्रस्ट है, लिथोस्फेयर सरफेस है. लिथोस्फेयर वाली आपका ये स्फीयर है. ठीक है, जहां पर सनरेज आ रही है. सनरेज आर कमिंग डाउन ऑन द लिथोस्फेरिक सरफेस. ये आपका लिथोस्फेयर है, हार्ड सरफेस है, रॉकी स्ट्रक्चर है, क्रस्ट है, फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ. दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज योर क्रस्ट. तो यहीं पर आपके सनरेज आती हैं. अब जब सनरेज यहाँ पर आएंगे तो आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं. आपके यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, हाउसेज हैं, रोड्स हैं, सॉइल है, ट्रीज, वेजिटेशन, प्लांट्स, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, सो अब ये सनरेज जो है यहाँ पर आकर के इस अर्थ सरफेस पर आसपास में जितनी भी चीजें होती हैं उसको ये गर्म कर देती है. ठीक है, जब सनरेज अर्थ पर आएगी तो दैट अर्थ सरफेस विल वार्म अप, वो गर्म हो जाएगा. होता है या नहीं होता है? कभी अगर आप कोई चीज धूप में रख देते हैं तो वो गर्म हो जाती है ना. क्यों गर्म हो गई है वो? Why? Because it has absorbed the heat, energy of sun. ठीक है, कोई भी आप पेन लीजिए या कोई भी यूटेंसिल लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्लास लेते हैं, उस ग्लास को अगर आप सनरेज के अंदर रख देंगे तो वो ग्लास जो है वो गर्म हो जाएगा. क्यों? बिकॉज जो उस ग्लास का सरफेस है, उस ग्लास का जो भी वॉल्यूम है, उस ग्लास का जो भी मास है, उसने सनरेज एब्सॉर्ब कर ली. ठीक है, अब क्योंकि उसने सनरेज एब्सॉर्ब कर ली है, उसने उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया है, तो वो गर्म हो जाएगा. इन द सिमिलर मैनर आप ये पढ़ के आए हैं दैट सन इन द सोलर सिस्टम इज द हेड. वो हेड होता है सोलर फैमिली का. उसके पास में हीट है, उसके पास में एनर्जी है, लाइट है. इट इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर प्लैनेट्स. बिकॉज प्लैनेट्स के पास में खुद की हीट नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, एनर्जी नहीं है. और एक प्लैनेट को उसकी हीट और लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, राइट. सो सन से जो भी रेज आती है अर्थ सरफेस पर, वो उसको वार्म कर देती हैं. अर्थ सरफेस पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आप देखेंगे हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करती हैं. अब अगर आपने कभी ऑब्जर्व करा हो, सो वो जो ग्लास है, आप एक काम करिएगा, आप एक ग्लास लीजिएगा और उस ग्लास को आप सनरेज के अंदर रखिए, फिर वो गर्म हो जाएगा. फिर आप उसको जब वापस से उठाकर लाएंगे, व्हेन यू विल गेट इट बैक इनसाइड, तो वो आप देखेंगे वापस नॉर्मल हो जाएगा. इट विल बिकम नॉर्मल एज इट वाज एंड इट वोंट बी एनी हॉट. वो ज्यादा अब गर्म नहीं रहेगा. सो व्हाट हैज हैपेंड टू दैट ग्लास? उस ग्लास को क्या हुआ? उसने तो इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी ना सन की, अब वो सारी की सारी एनर्जी गई कहाँ? सो दैट ऑल दैट एनर्जी हैज रेडिएटेड बैक. उस ग्लास में से वो सारी की सारी एनर्जी वापस बाहर निकल गई है. तो इन द सिमिलर मैनर आप ये देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ इस सन की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती है. अब ये एब्सॉर्ब तो कर लेती है, लेकिन वापस शाम होते होते ये इस एनर्जी को एटमॉस्फेयर में रेडिएट करती है. रेडिएट का मीनिंग होता है वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करना. ठीक है, इसको ऐसे समझो. सनरेज आई, सनरेज आर कमिंग ऑन दी अर्थ सरफेस. उसने अर्थ सरफेस को आकर के वार्म करा. अर्थ सरफेस ने हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, बिकॉज हमें
एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सन से मिलेगी। प्लैनेट्स के पास में खुद की लाइट नहीं होती, एनर्जी नहीं होती है। अब उस अर्थ सरफेस ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ दिस अर्थ विल रिलीज दिस एनर्जी, ये वापस से इस एनर्जी को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगी। ठीक है। सो अब क्या होता है कि जब ये एटमॉस्फेयर में अगर मान लो सारी की सारी अगर अर्थ ने ऐसे रिलीज कर दी एनर्जी, तो अर्थ के पास में तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। अर्थ विल बी लाइक वेरी वेरी कूल, वेरी वेरी नॉर्मल। जैसा कि आपका एक ग्लास, वापस से उसकी पूरी हीट एनर्जी खत्म हो गई। आई आस्क्ड यू कि आप एक ग्लास लीजिए और उस ग्लास को आप सनरेज में रख दीजिए। ठीक है। ये ग्लास पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। फिर आप जब इस ग्लास को वापस से अंदर ले आएंगे, तो इसमें जो भी हीट थी वो रिलीज हो जाएगी। वो सारी की सारी क्या होगी? हीट रिलीज हो जाएगी और ये ग्लास वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये सेम प्रोसेस आपकी अर्थ पे काम करेगा। हीट एनर्जी आ रही है, सनरेज आ रही है, अर्थ सरफेस को उसने वार्म अप कर दिया। अब अर्थ क्या कर रही है? वो सारी की सारी एनर्जी वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रही है। लेकिन अगर सारी की सारी एनर्जी वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, तो प्लैनेट के पास में, अर्थ के पास में कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगी। तो इस एनर्जी को सेव करने के लिए, सो दैट हमारी अर्थ वार्म रहे, है ना, अगर सारी एनर्जी रिलीज होगी तो वापस आपकी अर्थ क्या हो जाएगी? वेरी वेरी कूल। जैसा आपका ग्लास हो गया, आप ग्लास को अंदर लेकर के आ गए रूम में और आपका सारा हीट एनर्जी उसमें से रिलीज हो गया और वो ग्लास वापस से नॉर्मल हो गया एंड नाउ इट इज नो मोर हॉट। सो इन द सिमिलर मैनर आपकी अर्थ भी कूल डाउन हो जाएगी। लेकिन अर्थ पर एक टेम्परेचर जरूरी है, थोड़ी वार्मनेस जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स हैं, इतने सारे क्रॉप्स हैं, वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, एंड एवरीवन नीड्स एनर्जी। सन रेज सबको चाहिए होती है। इनफैक्ट द ह्यूमन बॉडी also needs sun rays. It is one of the most important element that human body also needs, right? तो थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहे हमारी अर्थ पर, तो हमें इन सनरेज को रोकना पड़ेगा जो वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। तो अब इन सनरेज को हम रोकेंगे कैसे? सोचिए। सो व्हाट हैपेंस, आपके एटमॉस्फेयर में एक गैस प्रेजेंट होती है और उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसे हमारी अर्थ सरफेस से बाहर रिलीज नहीं होने देती है। तो ये जो एनर्जी वापस से रेडिएट होती है अर्थ सरफेस से, ये एनर्जी को स्टॉप कर देती है। ये जो गैशियस लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक गैशियस लेयर आपके प्रेजेंट है, ये गैशियस लेयर, दिस गैशियस लेयर एक्चुअली स्टॉप्स, ये रोक देती है जो भी अर्थ सरफेस वापस से रिलीज कर रही है हीट एनर्जी को। दिस विल स्टॉप, ये आपकी गैशियस लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये इसको रोक देती है। और क्योंकि स्टॉप कर देगी तो यहीं पर आपके सारी की सारी क्या होगी? सनरेज रुक जाएंगी। सो द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी मेंटेन्ड और यहाँ पर थोड़ी वार्मनेस रहेगी। ठीक है। अब इसी की वजह से आप ये देखते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है, ये जो सन हीट यहाँ पर रिसीव करी जा रही है, द परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। ये सिर्फ एक अमाउंट तक रह सकती है। ठीक है। देखो, किसी भी चीज की जब ओवर लिमिट हो जाती है या लिमिट से जब बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो चीज खराब होती है ना। सो उसी तरीके से जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हो गया है, बिकॉज वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे जा रहा है और वो अर्थ सरफेस के टेम्परेचर्स को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? ये जो गैशियस लेयर है, ये बेसिकली अर्थ सरफेस से जो भी आपके रिलीज हो रही है हीट एनर्जी, उसको स्टॉप कर रही है। ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग, अर्थ सरफेस पर इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है। हम, आप देखते हो, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम पेड़ जला रहे हैं, हम इतना सारा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ये टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जब ये टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो आप ये देखेंगे कि फिनोमिना होता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा का पूरा का जो ग्लोब है, पूरा का पूरा जो आपका अर्थ सरफेस है, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है। और जब ऐसा होता है आपकी ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगते हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। आप अभी अगर रिसेंटली सुन रहे हो तो क्लाइमेट इज चेंजिंग वेरी वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है।
रेनफॉल पैटर्न्स में चेंज आ गया है, ठीक है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दैट वी आर क्रिएटिंग। ऑलराइट, सो अब आप इस लाइन को रीड करें तो आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगी दैट कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी हीट को एब्सॉर्ब करती है विच इज रेडिएटेड बाय द अर्थ। जब अर्थ सरफेस हीट एनर्जी रेडिएट करती है उसको ये एब्सॉर्ब कर लेती है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, बिकॉज प्लांट्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और प्लांट्स को जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी, वो सन से मिलती है, ठीक है। तो अगर सनरेज सारी की सारी अर्थ सरफेस पर से रिलीज हो जाएंगी तो अर्थ के पास में तो कोई एनर्जी बचेगी ही नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स के पास में खुद की हीट नहीं है, खुद की एनर्जी नहीं है, और प्लैनेट्स अपनी हीट और एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं, राइट। सो थोड़ी हीट तो हमें सेव करके रखनी पड़ेगी। सो फॉर दैट मैटर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है।